Hello students, hello all of you, good afternoon. Myself Monica Sharma from Image English School. My subject is Sanskrit Standard 7th, second semester, chapter number 7, Suktayah, Maxims and Epigrams है ना. Maxims means कहावतें and epigrams means चुटकुले, jokes. This chapter is explained and textbook exercises also completed. I am again one by one Suktaya, word meaning explanation, translation and expansion also explained one again, and you have to write in your notebook. ओके ये epigrams जो है 7 epigrams are there. 7 epigrams की आपको translation, word meaning and एक्सपेंशन आपको लिखना है. यू हैव टू राइट इन गुड हैंड राइटिंग. फर्स्ट इज ज्ञानम भारह क्रियाम बिना. वर्ड मीनिंग है क्रिया बिना मीन्स विदाउट एक्शन, बिना कुछ किए. ट्रांसलेशन है विदाउट एक्शन नॉलेज इज द बर्डन, है ना. बिना कुछ किए हमको क्या लगता है, नॉलेज क्या लगता है, बर्डन लगता है. Knowledge that is not put to use is meaningless like a burden. Expansion है if a knowledgeable person does not behave according to the knowledge he has, his education proves useless. It is a burden. A person who does not use ethical knowledge and behave accordingly gets no respect in society. ओके ये मैंने आपको वैसे एक्सप्लेन कर दिया था, पर आपको लिखना है सिस्टमेटिक है, इसलिए मैं एक बार और एक्सप्लेन कर रही हूँ. एन एजुकेटेड पर्सन इज एक्शन हिज डीड्स मैच हिज नॉलेज सो दैट हिज नॉलेज shines forth. A person who displays his knowledge, education through ethics and good character looks good only he is a really educated person. Okay. Now second, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी. वर्ड मीनिंग स्वर्गादपि, इसका संधि विच्छेद होगा स्वर्गात प्लस अपि इक्वल टू स्वर्गादपि. मोर देन इवन हेवन. गरीयसी मीन्स ग्रेटर, है ना. स्वर्गादपि मतलब स्वर्ग से भी अच्छा, स्वर्ग से भी अच्छा, स्वर्ग से भी बेटर. तो मोर देन इवन हेवन. नेक्स्ट ट्रांसलेशन है मदर एंड मदरलैंड आर ग्रेटर देन इवन हेवन, है ना. जो मदर होती है वो और हमारी जो जन्मभूमि है, मातृभूमि है, वह किससे भी ग्रेटर देन है, वह स्वर्ग से भी महान है. मदर और मदरलैंड, ओके, वह स्वर्ग से भी महान है. एक्सपेंशन है इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड एनीथिंग सिमिलर टू मदर इन द वर्ल्ड. ट्रूथ टू टेल it is impossible to do so. Those who have received a mother's love are considered fortunate. Even the happiness attained by heaven is less than that attained by a mother's love. Similarly, the land where we have been born and brought up, where our life was shaped, our motherland is also our mother. It is our primary pious duty to protect this motherland. Quite a few patriots gave up their very lives for their motherland. To free the country from British rule, leaders like Lokmanya Tilak, महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, सरदार पटेल etc. faced various hardships. In this way, for each person a mother and the motherland is greater than even heaven.
नेक्स्ट थर्ड नंबर, आपदी मित्र परीक्षा। वर्ड मीनिंग है आपदी मीन्स इन हार्ड टाइम, ड्यूरिंग डिफिकल्टीज, एंड मित्र परीक्षा मीन्स टेस्ट ऑफ अ फ्रेंड, checking the true false qualities of a friend. Okay, translation, friend is tested during difficulties. Expansion है a true friend will not leave you at any time, during good or bad times he will be his friend all the time. A friend indeed is a friend indeed. A person who can give up his very life for a friend is a true mate. Others who are just fair weather friends are never true friends. As soon as their purpose is served, such friends will disappear. Never trust such people. They will desert you when you actually did support. Okay, now fourth number, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। वर्ड मीनिंग है श्रद्धावान मीन्स अ फेथफुल पर्सन, है ना, जिसको अपने ऊपर विश्वास हो, खुद के ऊपर विश्वास हो। अ पर्सन हु बिलीव्स इन हिमसेल्फ, लभते मीन्स गेट्स। ट्रांसलेशन है अ सेल्फ कॉन्फिडेंट पर्सन, वन हु बिलीव्स in himself gains knowledge. Expansion है explanation is a person who has faith and self confidence only can gain knowledge from his teacher, guru. Faith gives a person internal strength. Hard to gain knowledge can be easily attained by such a person by faith. As it is said in the Bhagavad Gita, यो यच्छद्रः सम एव सः. A person is according to the faith he has. Thus only a person who is confident and has faith can gain knowledge. है ना, जिस पर्सन को फेथ है, जिसके पास मतलब उसको नॉलेज है जिस चीज़ का, तो ओनली अ पर्सन हु कॉन्फिडेंट, मतलब जिस पर्सन को नॉलेज है, फेथ है, अपने ऊपर विश्वास है, वो उसी पर्सन को कॉन्फिडेंस आएगा अपने ऊपर, वही उस कॉन्फिडेंट होगा वो, और वो ये नॉलेज गेन कर सकता है। वो नॉलेजेबल पर्सन हो सकता है, बुद्धिमान वही व्यक्ति हो सकता है। नेक्स्ट है फिफ्थ नंबर, बुद्धि ही यस्य बलम तस्य। वर्ड मीनिंग यस्य मीन्स हुज, विथ होम, एंड तस्य मीन्स हीज। बुद्धि रखने वाली व्यक्ति में ताकत होती है ना, जिस व्यक्ति के पास बुद्धि होती है उसके पास कॉन्फिडेंस होता है, ताकत होती है, स्ट्रेंथ होती है ना। ट्रांसलेशन इज अ पर्सन हु हैज़ इंटेलिजेंस ऑल्सो हैज़ स्ट्रेंथ। एक्सप्लेनेशन इज दिस मैक्सिम एपिग्राम सिंग्स द प्रेज ऑफ इंटेलिजेंस। अ पर्सन's इंटेलिजेंस इज his her true strength. Mental strength is always stronger than physical strength. With intelligence, a person can accomplish any kind of difficult deed most easily. Therefore, man should develop, enhance his intellect. नेक्स्ट 6 नंबर, संघे शक्ति कलो युगे। कलयुग में क्या है? संघ। संघ मीन्स यूनिटी ही क्या है? शक्ति है, ताकत है, स्ट्रेंथ है। वर्ड मीनिंग संघे मीन्स इन यूनिटी, इन टूगेदरनेस। कलो युगे मीन्स इन कलयुग। ट्रांसलेशन इज देयर इज स्ट्रेंथ इन यूनिटी इन कलयुग। एक्सपेंशन है यूनाइटेड स्ट्रेंथ इज most necessary to achieve untidily. One can achieve definite and necessary success in it. Some similar English proverbs, many hands make light work, and second is unity is strength. Okay, once again I am repeating, united strength is
most necessary to achieve any success, to complete any jobs. ये बाय मिस्टेक छूट गई थी लाइन. If any work is done unitedly, one can achieve definite and necessary success in it. Some similar English proverbs. First number, many hands make light work, and second is unity is strength, etc. Okay. Now 7 number is शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम. वर्ड मीनिंग इज शरीर माध्यम इक्वल टू, इसका संधि विच्छेद होगा शरीरम प्लस आध्यम इक्वल टू शरीर माध्यम. शरीर माध्यम मीन्स बॉडी इज द फर्स्ट. खलु मीन्स ट्रूली, इंडीड. धर्म साधनम मीन्स टूल ऑफ रिलीजन, इंस्ट्रूमेंट. ट्रांसलेशन इज indeed the body is the first instrument, tool of religion. है ना. फर्स्ट क्या है? फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट इज आवर बॉडी. हमारी बॉडी फर्स्ट है. ऑफ रिलीजन, एक्सपेंशन. द गिवन मैक्सिम एपिग्राम्स टॉक्स अबाउट अ हेल्दी बॉडी एंड कॉल्स इट द होली रेसिडेंस, टेम्पल ऑफ द सोल. Our body is the primary instrument in attending divinity. In this world, every person has some duties towards his her parents, teachers, friends, comparators, etc. These duties themselves are religion. All these duties can be performed or practiced only by the body. Thus, every person should keep his body strong and healthy. Okay, complete these 7 epigrams. Now I am explaining workbook exercise chapter number 7 सुक्तयः मैक्सिम एंड एपिग्राम्स. है ना. इसमें MCQs आर देयर. फर्स्ट क्वेश्चन इज, फर्स्ट एक्सरसाइज इज, फॉर ईच ऑफ द गिवन क्वेश्चंस चूज द ऑप्शन that is its correct answer and write the letter corresponding to the answer in the provided bracket. फर्स्ट इज when does knowledge become a burden. है ना. बर्डन कब नॉलेज हमको बर्डन कब लगता है? ऑप्शन इज when there is no understanding. सेकेंड ऑप्शन इज without action or responsibility. थर्ड नंबर when it is only superficial. and fourth is according to the person's behavior. तो बर्डन हमको लगता है बी ऑप्शन इज राइट. ओके, विदाउट एक्शन और रिस्पॉन्सिबिलिटीज. ओके. नाउ सेकेंड इज मदर एंड मदरलैंड आर ग्रेटर देन इवन व्हाट. मदर और मदरलैंड किससे ग्रेटर है? फर्स्ट ऑप्शन इज अदर कंफर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. सेकेंड द हाइएस्ट डिग्री. थर्ड ऑप्शन इज हेवन एंड फोर्थ ऑप्शन इज द पर्सन गिविंग एवरी कंफर्ट. तो राइट आंसर इज 3 हेवन. है ना. स्वर्ग से भी ज़्यादा महान है मदर और मदरलैंड. है ना. तो राइट आंसर इज सी. यू हैव टू राइट ईयर सी इन प्रोवाइडेड ब्रैकेट. एंड फर्स्ट का आंसर बी आएगा, ए नहीं. ओके, राइट आंसर इज बी ऑप्शन. थर्ड, व्हेन इज अ ट्रू फ्रेंड टेस्टेड. ट्रू फ्रेंड का टेस्ट कब होता है, कब कर सकते हैं? फर्स्ट नंबर एट द टाइम ऑफ कैलेमिटी. में कैलेमिटी मीन्स आपत्ति में, विपदा में, मुसीबत में और संकट में. है ना. संकट में फ्रेंड का टेस्ट हम कर सकते हैं. दिस इज़ द राइट आंसर. ए ऑप्शन इज. एंड सेकेंड ऑप्शन इज ड्यूरिंग हैप्पी मोमेंट्स. थर्ड ऑप्शन इज बाय कंपेयरिंग टू अदर फ्रेंड्स.
and fourth option is in public program. The right answer is A, at the time of calamity. Now fourth, what kind of men can gain knowledge? First is a sensible person, B option a person who can spend money, and third option is world traveler, and fourth option is faithful and self-confident person. Fifth number is dash is the first instrument of religion. A option is meditation, second option is body, third option is forsake, and fourth option is intelligence. So right answer is body. Body is the first instrument of religion. Now sixth number, without action debt is a burden. तो without action knowledge is a burden, है ना. हम कुछ करेंगे ही नहीं तो नॉलेज हमको क्या लगेगा, बर्डन लगेगा. नेक्स्ट 7 नंबर, देयर इज स्ट्रेंथ इन यूनिटी इन डैश. फर्स्ट सतयुग, सेकेंड द्वापर युग, सी त्रेता युग, एंड फोर्थ इज कलयुग. तो राइट आंसर इज फोर्थ, डी ऑप्शन इज राइट, कलयुग. There is strength in unity in Kali-Yuga. Now 8 number, kasya balam asti. Option yasya dhanam, yasya शीलम, यस्य विद्या, and यस्य बुद्धि. तो right answer is यस्य बुद्धि. यस्य बुद्धिः बलम अस्ति. 9 number, write the English meaning of the word खलु. खलु का इंग्लिश मीनिंग क्या है? फर्स्ट इज वीणा, सेकेंड इज ट्रूली, थर्ड इज श्योरली, एंड फोर्थ इज विग्ड मैन. राइट आंसर इज बी, ट्रूली. नाउ 10 number MCQs इज जननी जन्मभूमि च कस्मात् अपि गरीयसी. फर्स्ट ऑप्शन गृहात्, सेकेंड ऑप्शन देशात्, थर्ड ऑप्शन इज स्वर्गात्, एंड फोर्थ ऑप्शन इज धर्मात्. तो राइट आंसर इज स्वर्गात्. जन्मभूमि च स्वर्गात् अपि गरीयसी. नेक्स्ट 11 नंबर, व्हाट डज द वर्ड गरीयसी मीन्स. गरीयसी का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गरीयसी? तो फर्स्ट ऑप्शन इज वन हु रोटेट्स, सेकेंड बेटर देन अदर्स, एंड थर्ड नंबर हज, एंड फोर्थ नंबर इज वर्चस. तो राइट आंसर इज बी ऑप्शन, बेटर देन others. Gariyasi means better than others. So you have to write here B. Now next 12 number exercise. What do the words Kalo-yuge mean? Kalo-yuge mean in Kali-yug, in this world, and nowadays, and in any era. So right answer is in Kali-yug. Kalo-yuge means in Kali-yug. You have to write here A option. Next and last 13 number, what does the word adhyam mean? First is starting, second first, third option is habitual, and fourth option is containing ginger, है ना. तो right answer is first. Adhyam means first. You have to write here B. Okay, complete this exercise in your workbook. And now second question is translate the following maxims in English and explain them in 5 sentences in English. आपदी मित्र परीक्षा मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है ना. तो यहाँ पे आपको ट्रांसलेशन लिखना है इस वीडियो में से देख के. यू हैव टू राइट ईयर ट्रांसलेशन एंड यू हैव टू राइट ईयर एक्सपेंशन, है ना, फ्रॉम दिस वीडियो. इस वीडियो में मैंने आपको जो एक्सप्लेन किया है उसमें से देख के आपको यहाँ पर लिखना है. यू हैव टू राइट ईयर इन गुड हैंड राइटिंग. सेकेंड बुद्धि ही यस्य बलम तस्य, यहाँ पे ट्रांसलेशन एंड एक्सप्लेनेशन. थर्ड नंबर शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यहाँ पे भी लिखना है, ये कंप्लीट करना है. फोर्थ नंबर श्रद्धावान लभते ज्ञानम. एक बार और मैं आपको रिपीट कर दूँगी. यहाँ पे ट्रांसलेशन लिखना है और उसका एक्सप्लेनेशन लिखना है. एंड फिफ्थ नंबर इज ज्ञानम भारह क्रिया बिना, तो यहाँ पे लिखना है. अब आपको वो एपिग्राम्स जो मैंने 7 एक्सप्लेन की है वो आपको नोटबुक में अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है. इस वर्कबुक में ही कंप्लीट कर लीजिएगा 1 by 1, है ना. 7 यहाँ पे स्पेस भी है तो आप यहाँ पे 7 वो कंप्लीट कर लीजिए. यू हैव टू राइट हियर इन योर वर्कबुक. एंड 6 नंबर
जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी. ट्रांसलेशन एक्सप्लेनेशन. ओके. एंड 7 एंड लास्ट नंबर इज संघे शक्ति कलो युगे. यहाँ पे कंप्लीट कर लीजिए. फिर ये एक्सरसाइज मैं आपको एक बार और एक्सप्लेन कर दूंगी नेक्स्ट लेक्चर. ओके. एंड आई विल सेंड पिक ऑल्सो. चलिए, ओके, बाय, टेक केयर एंड completed all exercise.